صدیوں سے انسان اپنی تجارت اور سلطنتوں کو بڑھانے کے لیے ایسی نہریں بناتا آیا ہے جنہوں نے تہذیبوں کی تقدیر بھی پلٹ کر رکھی۔ امریکہ کے تسلط نے چھوٹے اور کمزور ممالک کی تجارت کو محدود کیا اور انہیں ہمیشہ بڑے طاقتور ممالک کے رحم و کرم پر رکھا۔ یوریشیا کے دل میں ایک نیا خواب جنم لے رہا ہے، ایک ایسا منصوبہ جو بحیرہ کیسپیئن کو بحیرہ اسود سے جوڑنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تاہم خواب اور حقیقت کے درمیان ایک باریک لکیر موجود ہے۔ اگر یہ نہر تعمیر ہو گئی تو یہ وسط ایشیا کے بند علاقے کو طویل المدتی اسٹریٹجک طاقت میں بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ صدیوں سے انسان اپنی طاقت، تجارت اور سلطنتوں کو بڑھانے کے لیے ایسی نہریں بناتا آیا ہے جنہوں نے نہ صرف جغرافیے کو بدلا بلکہ تہذیبوں کی تقدیر بھی پلٹ کر رکھ دی۔ کبھی سویز کنال نے بحیرہ روم کو بحیرہ احمر سے ملا کر یورپ اور ایشیا کو جوڑا تو کبھی پاناما کنال نے بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کو ملا کر عالمی تجارت کے دھارے بدل دیے۔ اور آج یوریشیا کے دل میں ایک نیا خواب جنم لے رہا ہے، ایک ایسا منصوبہ جو اگر حقیقت بن گیا تو پورے بر اعظم کے نقشے میں بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ یہ ہے 700 کلومیٹر طویل مجوزہ آبی گزرگاہ جو بحیرہ کیسپیئن کو بحیرہ اسود سے جوڑنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ روس، قازقستان اور ممکنہ طور پر چین کی حمایت سے یہ 20 ارب ڈالر کا منصوبہ وسط ایشیائی ریاستوں کو پہلی بار سمندروں تک بااختیار رسائی دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اس نہر کی کامیابی محض ایک نیا راستہ نہیں ہوگی بلکہ یوریشیا کی سیاست، معیشت اور تجارت کی ایک نئی تشکیل ہوگی۔ دنیا کی اہم سمندری گزرگاہیں ہمیشہ طاقت کے کھیل کا مرکز رہی ہیں اور اس میں امریکہ نے اپنی اجارہ داری قائم کر کے عالمی تجارت اور سیاست پر قبضہ جما رکھا ہے۔ سویز، پاناما اور ملٹری چینلز کی جدید انتظامیہ میں امریکی اثر و رسوخ نے یہ واضح کر دیا کہ عالمی سمندری راستے صرف آزادانہ تجارت کے لیے نہیں بلکہ طاقت کی نمائش اور سیاسی دباؤ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ امریکہ کے اس تسلط نے چھوٹے اور کمزور ممالک کی تجارت کو محدود کیا اور انہیں ہمیشہ بڑے طاقتور ممالک کے رحم و کرم پر رکھا، جبکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے عالمی قوانین کو اپنی مرضی سے موڑ کر استعمال کیا گیا۔ سویز کنال دنیا کی سب سے اہم تجارتی گزرگاہوں میں سے ایک ہے، جہاں ہر سال تقریباً 20,000 سے زیادہ بڑے جہاز گزرتے ہیں، جن میں تیل، گیس، کنٹینر اور تجارتی مال شامل ہے۔ یہ نہر صرف یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کا سب سے مختصر راستہ فراہم نہیں کرتی بلکہ عالمی اقتصادی دھاروں میں بھی ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ سویز کنال کی وجہ سے افریقہ اور مشرق وسطیٰ کی معیشتیں یورپ کی توانائی کی ضرورت اور ایشیا کی تجارتی پیداوار آپس میں جوڑتی ہیں، جس نے اسے بین الاقوامی سیاست اور معیشت کی شہرک بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بڑی عالمی طاقت، چاہے امریکہ ہو یا یورپی یونین کے ممالک، اس پر اثر و رسوخ قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ عالمی تجارتی اور سیاسی توازن میں اپنا فائدہ یقینی بنایا جا سکے۔ اسی طرح پاناما کنال بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کے درمیان ہر سال تقریباً 14,000 سے 15,000 جہازوں کے لیے اہم راستہ ہے۔ یہ نہر امریکی جغرافیائی حکمت عملی اور عالمی معاشیات میں ایک لازمی ستون ہے، کیونکہ اس کے ذریعے امریکہ، ایشیا، لاطینی امریکہ اور یورپ کے تجارتی تعلقات براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ پاناما کنال کے بغیر عالمی شپنگ کمپنیوں کو ہزاروں میل طویل سفر کرنا پڑتا، جس سے وقت اور لاگت میں اضافہ ہوتا۔
यही वजह है कि ये नहर बैनुल-अक़वामी सियासत में भी एक ताकतवर हथियार की हैसियत रखती है और जिस मुल्क के पास इस पर कंट्रोल हो वो आलमी इक़्तिसादी और सियासी फैसलों में बड़ा असर डाल सकता है। अगर यूरेशिया कनाल तामीर हो गई तो ये नहर अमरीकी इजारादारी के इस मुनज़्ज़म निज़ाम के लिए चैलेंज साबित होगी। ये नहर न सिर्फ वस्त एशिया के ममालिक को आज़ादाना समंदरी रसाई देगी बल्कि अमेरिका के समंदरी रास्तों पर कब्जे और तिजारती दबाव को कमज़ोर करेगी। यह मंसूबा जाहिर करता है कि आलमी तिजारत में ताकत सिर्फ बंदरगाहों और समंदरी गुजरगाहों के कंट्रोल में नहीं बल्कि सियासी और इक़्तिसादी खुदमुख्तारी के हसूल में भी है। यूरेशिया कनाल अमरीकी तसल्लुत के चेहरे पर एक सवालिया निशान लगाने की सलाहियत रखती है और इसके ज़रिए खित्ते के ममालिक अपनी तकदीर खुद बनाने के काबिल हो सकते हैं। बहरा कैस्पियन की सबसे बड़ी बंद आबी गुजरगाह है जिसमें तेल, गैस और अनाज के वसी ज़खायर मौजूद हैं। इसके इर्द गिर्द बसने वाली रियासतें इन्हीं वसाइल पर इन्हिसार करती हैं लेकिन एक बुनियादी रुकावट उन्हें हमेशा पीछे रखती है। कैस्पियन सी का कुदरती रास्ते से किसी भी बड़े समंदर तक रसाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर अनाज, हर बैरल तेल और हर कार्गो को आलमी मंडियों तक पहुंचने के लिए दूसरे ममालिक की सरजमीन और इनकी इजाजत से गुजरना पड़ता है। फिलहाल वाहिद रास्ता वोल्गा डॉन नहर है जो 1952 में सोवियत दौर में कायम हुई मगर इसकी गहराई सिर्फ 3.5 मीटर और सलाहियत इंतहाई महदूद है। यहाँ से सिर्फ छोटे जहाज गुजरते हैं, रफ्तार भी कम होती है, कंट्रोल भी इंतहाई सख्त है और साल के कई महीने ये रास्ता बंद भी रहता है। नतीजे के तौर पर जो काज़िकिस्तान जैसे मुल्क दुनिया के बड़े गंदम बरामद कुननकान में शामिल हैं सालाना अरबों डॉलर का नुकसान उठाते हैं क्योंकि वो अपनी पैदावार को आज़ादाना तौर पर दुनिया तक नहीं पहुंचा सकते। काज़िकिस्तान ने 1991 में आज़ादी के बाद बहुत सा कुदरती सरमाया समेटा, वसी ज़मीन, कुदरती वसाइल, तज़वीराती मकाम, लेकिन समंदर तक रास्ता ना होना इसकी तरक्की की राह में बुनियादी रुकावट रहा। साबिक सदर नूर सुल्तान हमेशा इस कमी को कौमी तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार समझते थे। इनका ख्वाब था कि काज़िकिस्तान दुनिया तक रसाई के लिए किसी से इजाज़त ना मांगे बल्कि खुद अपने रास्ते का मालिक बने। 2007 में काज़िकिस्तान ने रूस को एक जदीद गहरी नहर की तजवीज़ पेश की। उसी ज़माने में चीन ने BRI का आगाज़ किया यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, जिसका मकसद यूरेशिया के तिजारती रास्तों को नए सिरे से तश्कील देना था। यूं कैस्पियन और ब्लैक सी को मिलाने वाली मुजव्विज़ा नहर 3 ताकतों के मफादात को यकजा करती नजर आई। रूस अपनी पुरानी नहर को जदीद बनाना चाहता था, काज़िकिस्तान समंदरी आज़ादी की तलाश में था और चीन को मगरिब की तरफ एक नया तिजारती रास्ता दरकार था। मुजव्विज़ा यूरेशिया कनाल तकरीबन 700 किलोमीटर तवील होगी और रूस के जनूबी हिस्से में मौजूद कूमा मिंच डिप्रेशन नामी कुदरती नशीबी इलाके से गुजरेगी। ये खित्ता इसलिए मौजू है कि यहाँ बुलंद पहाड़ या मुश्किल जोग्राफियाई रुकावटें नहीं हैं। नहर की गहराई 6.5-7 मीटर तक रखी जाएगी ताकि 10 से 15,000 टन वजन वाले जदीद कार्गो जहाज यहाँ से गुजर सकें। वोल्गा डॉन जो मौजूदा नहर की सलाहियत से 3 गुना ज़्यादा है, अंदाज़ा है कि सालाना 75 से 100 मिलियन टन तक कार्गो इस रास्ते से गुजर सकता है। कैस्पियन के अहम बंदरगाही शहर जैसे अक्तो, तुर्कमान बाशी और अस्तरहान बराह रास्त बहरा अस्वद तक पहुंच जाएंगे और वहां से तुर्की के तंग आबी रास्तों को अबूर करके बहरा रूम और दुनिया भर से जुड़ जाएंगे। इस तरह वस्त एशियाई रियासतें जो सदियों से जोग्राफियाई तौर पर मुक़य्यद थीं एक नए तिजारती दौर में दाखिल हो जाएंगी। ताहम इस मंसूबे के इंजीनियरिंग चैलेंज बहुत ज़्यादा हैं। सबसे अहम बात यह है कि कैस्पियन सी सतह समंदर से 28 मीटर नीचे वाक़ है,
जबकि ब्लैक सी सतह समंदर पर है। इस फर्क की वजह से पानी खुद बहाव नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया के जदीद तरीन लॉक सिस्टम्स और ताकतवर पंपिंग स्टेशंस की जरूरत होगी, जो पनामा कैनाल की तरह होंगे मगर इनसे भी ज्यादा जदीद और बड़े पैमाने पर होंगे। इसके अलावा इलाके की जमीन खुश्क, रेतली और कटाव का शिकार है, जिसका मतलब है कि नहर के किनारों को मजबूत बनाना, ज़राई ज़मीनों को नमकियात से बचाना और पानी की सतह बरकरार रखने के लिए मसनूई ज़खायर की तामीर लाजमी होगी। इस मंसूबे में दो तरफा शिपिंग लेंस, रियल टाइम नेविगेशन सिस्टम, खुद का ट्रैफिक कंट्रोल और डिजिटल वाटर मैनेजमेंट जैसे जदीद निज़ाम भी इस्तेमाल होंगे। तामीर के दौरान हज़ारों मजदूर मुख्तलिफ मकामात पर बैक वक्त काम कर रहे होंगे और मंसूबा कम अज कम 10 से 15 साल तक जारी रह सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज अलबत्ता फाइनेंस का है। यह मंसूबा कम अज कम 20 अरब डॉलर का है। रूस इसका हामी है मगर पाबंदियों और मुआशी दबाव का शिकार है। काज़ाकिस्तान माली लिहाज से कमज़ोर है और तन्हा ये बोझ नहीं उठा सकता। चीन के पास पैसा भी है, तजर्बा भी और मफाद भी, लेकिन इतने बड़े मंसूबे की वापसी में दहाइयाँ लग सकती हैं, जिससे सरमायाकारी का फैसला पेचीदा हो जाता है। साथ ही खित्ते के जियोपॉलिटिकल हालात भी गैर यकीनी हैं। ईरान और अज़रबैजान को खदशा है कि ये नहर रूस की ताकत बढ़ा देगी और तुर्की के पास बॉस्फोरस और दार दानिलस की चौकियां मौजूद हैं, यानी चाहे नहर बन भी जाए फिर भी समंदर तक आखिरी रसाई तुर्की के हाथ में रहेगी। कुछ माहिरीन कहते हैं कि तेल और गैस अब ज्यादातर पाइपलाइन से मुंतकिल होते हैं, इसलिए ये नहर मौशी के बजाय सियासी ख्वाब ज्यादा लगती है। मगर इसके हामी इसे सदियों की सरमायाकारी करार देते हैं, जो आने वाली नस्लों के लिए यूरेशिया का नक्शा बदल सकती है। सबसे हसास मसला माहौलियात का है। दरियाओं का रुख बदलना, आबी गुजरगाहें खोदना और पानी के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां हमेशा माहौल पर गहरे असरात छोड़ती हैं। मछलियों की हिजरत के रास्ते छिन सकते हैं, दलदली इलाके खुश्क हो सकते हैं, खारा पानी ज़राई ज़मीन को नुकसान पहुंचा सकता है और कटाव का अमल मज़ीद तेज़ हो सकता है। अगरचे मंसूबा साज मसनूई ज़खायर, कंट्रोल्ड फ्लड गेट्स और फिश पैसेजेस की बात कर रहे हैं, लेकिन तारीख में बड़े आबी मंसूबे अक्सर गैर मुतवक्के और नाकाबिले वापसी नताइज लाते हैं। 2025 तक ये मंसूबा अब भी फिजिबिलिटी, मुज़ाकरात और इंजीनियरिंग के इब्तदाई मराहिल में है। अगर सब मुमालिक एक सफ़े पर आ गए और सरमायाकारी का फैसला हो गया तो तामीर शायद इस दहाई के आखिर तक शुरू हो जाए। मुकम्मल होने का मुमकिना वक्त 2030 की दहाई के अवाखिर या 2040 की दहाई में होंगे। कुछ लोग इसे दुनिया की अगली सोवेस कनाल करार देते हैं, जबकि कुछ इसे एक गैर हकीकी ख्वाहिश समझते हैं। हकीकत यह है कि ऐसे अजीम मंसूबों की कामयाबी सिर्फ इंजीनियरिंग या मईशत पर नहीं, बल्कि सही वक्त और सियासी हमआहंगी पर मुनहसर होती है। अगर ये नहर वजूद में आ गई तो सोवेस और पनामा की तरह दुनिया के तिजारती नक्शे में अजीम तब्दीली ला सकती है। लेकिन फ़िलहाल ये एक बड़ा मगर मौलिक ख्वाब है, एक मुस्तकबिल जो अभी अपने वक्त का मुंतज़िर है। ये नहर सिर्फ तिजारती रास्ता नहीं, बल्कि खित्ते की सियासी ताकत का नया महवर भी बन सकती है। वेस्ट एशिया के मुल्क जो सदियों से समंदरों तक रसाई के बगैर रह गए, अब आलमी तिजारत के अहम खिलाड़ी बनने की सलाहियत रखते हैं। इस मंसूबे से न सिर्फ काज़ाकिस्तान बल्कि तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान और रूस के साहिली इलाकों की मईशत में भी ज़बरदस्त फ़रोग़ मुमकिन है। जदीद बंदरगाहें, शिपिंग हब और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स तामीर होकर पूरे खित्ते में रोज़गार के नए मौके पैदा करेंगे और इसके असरात यूरोप, मशरिक़ वस्ता और एशिया की तिजारत पर भी पड़ेंगे। तहम ख्वाब और हकीकत के दरमियान
ایک باریک لکیر موجود ہے۔ سرمایہ کاری کی کمی، سیاسی کشیدگی، ماحولیاتی تحفظ کے مسائل اور عالمی توانائی مارکیٹ کی تبدیلیاں اس منصوبے کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ پھر بھی اگر یہ نہر تعمیر ہو گئی تو یہ نہ صرف وسط ایشیا کے بند علاقے کو عالمی تجارت کے نقشے پر لا سکتی ہے، بلکہ اسے ایک طویل المدتی اسٹریٹجک طاقت میں بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ منصوبہ یوریشیا کے مستقبل کی کہانی لکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، ایک ایسا موقع جو آنے والی صدیوں میں خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔